Hi everyone, welcome to the channel Simple Concepts. I'm Rashmita and I'm back with another video. In this video, we are going to talk about the British conquest of Bengal. As in, Britishers ने कैसे करके बंगाल का conquest किया, मतलब बंगाल के ऊपर अपना power establish किया. So as you all know, कि बेसिकली ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए थे तो उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री ऑन द वेस्ट साइड ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश की थी. तो हाउ डिड ऑल हैपन कि ब्रिटिशर्स ने वेस्ट साइड से फिर ईस्ट साइड में शिफ्ट किया एंड दैट टू इन बंगाल बिकॉज जो अदर यूरोपियन पावर्स थी दे वर इन द साउथ ऑफ इंडिया. ओके, उन्होंने कभी साउथ से ज़्यादा ऊपर बढ़ने की कोशिश नहीं की थी. ऑल्दो पोर्तुगीज ट्राइड अ लिटिल टू कॉन्कर बंगाल बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया. सो व्हाट वर द कंडीशंस, उस टाइम ऐसी क्या कंडीशंस प्रिवेलिंग थी इंडिया में जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने अपना हेडक्वार्टर्स बंगाल को बनाया एंड हाउ डिड बंगाल एक्चुअली हेल्प देम to conquer or to establish their empire on all over of India. Okay, so before getting started with our lecture, there are three comprehensive batches for complete preparation of UPSC CSC 2020 and 2021, which are going to start from 8th of June 2020. So if you will see, there are like three batches. Okay, so one is in bilingual, like you will get English and Hindi both, and this Lakshya UPSC CSC 2021 is for only like for the people who are from Hindi medium or who want to prepare their content in Hindi, and this particular batch is for English medium students. Okay, so this is by the name of Expedition UPSC CSC 2021. So what you will get in these courses, so they are starting from 8th of June. As I already told you, you will get the full syllabus coverage. So if you are getting worried about कि history की preparation यहाँ हो जा रही है और बाकी कोई subject की आपकी preparation नहीं हो पा रही है, so you can actually join these courses, any one among them. Okay, and then you will get prelims and mains test series with analysis. You will also get dedicated doubt clearing sessions, and you will also get interview preparation tips. So for your amount, the amount that you will be paying for getting these courses, so you can use our code SIMPLEYT, so you will get an extra 10% off on your total amount. So it's a very good deal for you, so you must join any of these courses. Also, there is a Unacademy UPSC championship going on. It is a all India free mock test फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020. आप सबको पता है यूपीएससी की डेट आ चुकी है. सो दिस मॉक टेस्ट इज ऑन 21st June and right now you can enroll it for free. It is by the academic directors who curated and reviewed the test are Rakesh Verma sir, Runal Patel sir and Atish Mathur sir. So I would suggest कि you must go for this particular mock test, so it will help you in getting a like overview कि आपकी कितनी preparation हो चुकी है and what rest is there for you to study. So okay, so by telling this, I must start with our course. So yes, so the first English factory was established in Bengal was at the bank of river Hooghly in 1651 with the permission of Shah Suja, the Subadar of Bengal. So as I have already discussed in the foothold of the English, ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बेसिकली अपनी जो पहली फैक्ट्री थी बंगाल में वो लगाई थी हुगली के पास in 1651 and they got this permission from Shah Suja. That time he was the Subadar of Bengal. So they actually succeeded in getting a farman from Aurangzeb to trade duty free in Bengal, and later in 1696 they succeeded in getting zamindari rights of three villages in Bengal, that is Sultanuddin, Gobindpur and Kalikata. So this Kalikata later came to be known as Calcutta, as you all know. ठीक है, तो क्या हुआ था कि औरंगजेब के टाइम पे अंग्रेज़ों को बेसिकली एक फरमान दिया था, ठीक है, औरंगजेब ने. उसके अंडर क्या था कि दे वर अलाउड टू ट्रेड इन बंगाल ड्यूटी फ्री. ओके, सो दे वर अलाउड कि आपको कोई ड्यूटी पे नहीं करनी है जैसे बाकी लोगों को करनी पड़ती थी ट्रेड करने के लिए. यू कैन एक्चुअली
do your trade duty free, and this farman was issued in 1696. Okay, so बाद में क्या हुआ, बाद में they actually got the zamindari rights of the three villages in Bengal, that is Sultanuddin, Govindpur and Kalikata. So this is how they actually began. Okay, so this is like a background for you. But even after existing privileges from Aurangzeb's Farman to trade duty free, the officials of the company who were carrying on private trade on the side, which they refused to pay, okay, causing loss of revenue to Bengal. So basically क्या हुआ, जो परमिशन दी गई थी, ठीक है, ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की, वो बेसिकली दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को. बट क्या था, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूरी की पूरी अलग ट्रेड कर रही थी, और उसमें जो ऑफिशियल्स आते थे ना, उन्होंने सोचा कि हम मौके का फायदा उठाते हैं और हम लोग भी प्राइवेटली ट्रेड करेंगे. ओके, सो व्हाट हैपेंड वाज कि जैसे पूरी कंपनी को एक फरमान मिल गया था कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, तो जो ऑफिशियल्स अपना पर्सनल ट्रेड करते थे ट्रेडर्स के साथ, वो लोग भी इस चीज को ये मानने लगे कि जैसे उनको भी ये फरमान मिला है. ठीक है, सो दे यूज टू बेसिकली टेल द ट्रेडर्स कि नहीं नहीं, यू कैन नॉट आस्क अस फॉर द ड्यूटी बिकॉज वी हैव बीन गिवन अ फरमान बाय औरंगजेब. ओके, बट इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो टोटल रेवेन्यू था बंगाल का, उसमें बहुत ज़्यादा घाटा आ रहा था. बिकॉज आपने सिर्फ कंपनी को दी है, आपने उनको प्राइवेटली ट्रेड करने के लिए ड्यूटी फ्री नहीं अलाउ किया है. ठीक है, बट बिकॉज दे वर डूइंग ऑल ऑफ दैट ट्रेड ड्यूटी फ्री, तो एक तो जो कंपनी को दिया गया है कि आप ड्यूटी फ्री जाके ट्रेड करो, ठीक है, वो नुकसान, ऊपर से जो उनके एक एक पर्सनल है, और वो लोग बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत थोड़ा बहुत अमाउंट, दे यूज टू ट्रेड इन अ लॉट ऑफ अमाउंट. ओके, उनका अलग अपना पर्सनल बिजनेस चल रहा था. तो बेसिकली यही होता था कि इस वजह से जो है रेवेन्यू का बहुत बड़ा मतलब लॉस होने लगा बंगाल में. Hence the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan, protested, which ultimately led to the Battle of Plassey in later years. तो उस चीज से क्या हुआ कि जो नवाब ऑफ बंगाल थे उस टाइम के, तो मुर्शीद कुली खान, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि नहीं नहीं, आप पर्सनली अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, जो ऑफिशियल्स थे इंग्लिश कंपनी के, उनको बोला गया कि अगर आप पर्सनली ट्रेड कर रहे हो तो आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी. ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे वो लोग बहुत क्या करते थे कि अनफेयर ट्रेड मीन्स अप्लाई करते थे, मतलब फोर्स से चीज़ें छीन लेते थे. ठीक है, या फिर वो क्या करते थे कि वो जो उनको फरमान मिला था उसको रेंट पे दे देते थे बाकी ट्रेडर्स को कि तुम हमें इतना पैसा दो तो हम तुम्हें फरमान दे देंगे, सो दैट यू कैन ऑल्सो ट्रेड ड्यूटी फ्री. सो ये सब कुछ रीजंस थे जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल विद ईच एंड एवरी रूलर, कि कैसे कैसे जो रूलर्स थे बंगाल में, उनके इंग्लिश के साथ कैसे रिलेशंस थे, और कैसे क्या हुआ कि मतलब इंग्लिश जो है इतना बड़ा पावर बन गया था बंगाल में लास्ट में. ठीक है, ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम, बिकॉज इसी बैटल को हिस्टोरियंस मानते हैं कि इसी के बाद अंग्रेज़ों का जो राज था वो इंडिया पे ऑलरेडी बस गया था. बेसिकली तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल पे एक अपर होल्ड आ गया था कंपनी का, बट इसको हम बहुत इम्पोर्टेंट, लाइक दिस वॉज अ वेरी स्ट्रैटेजिक बैटल. ओके, सो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है. सो लेट अस डिस्कस व्हाट वाज द सिनेरियो इन बंगाल, कि जब ये सब हो रहा था तो व्हाट वाज द सिनेरियो. ओके, सो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, द नवाब ऑफ बंगाल एसर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी. तो क्या हुआ था, जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था कि औरंगजेब के बाद बहुत सारे वीक रूलर्स आए. ठीक है, मुगल एम्पायर में, जैसे बहादुर शाह वन, जहांगीर शाह, फारूक शियार. ठीक है, ये सब आए, तो उनकी वजह से क्या हुआ, जो अलग अलग रीजन्स थे उनमें जो रीजनल पावर्स थी वो बढ़नी शुरू हो गई. मतलब हर किसी ने सोचा कि अब हम जो है, जो हमारा एरिया है, इसको हम मुगल से छीन लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ताकि हमारा खुद का होल्ड होगा उस एरिया पे. सो द सेम थिंग वाज डन बाय द नवाब्स ऑफ बंगाल. दे एक्सर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी, कि उन्होंने बंगाल को अलग कर लिया. So in 1700, Murshid Quli Khan became Diwan of Bengal, and after his death, he was succeeded by his son-in-law Shujauddin, who ruled from 1727 to 1739. सो बेसिकली जो स्टेट ऑफ बंगाल था, ठीक है, जो बंगाल था उसको जो इंडिपेंडेंट स्टेट कह लीजिए आप, उसका फाउंडर कौन था,
मुर्शीद कुली खान, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है. सो मुर्शीद कुली खान बिकेम द दीवान ऑफ बंगाल. ओके, सो ही वाज द फर्स्ट दीवान ऑफ बंगाल. उससे पहले सूबेदार होते थे, जैसे हमने शाह सूजा पढ़ा था, ठीक है, प्रिंसेस को दिए जाते थे. सो मुर्शीद कुली खान एक्चुअली फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल. ठीक है, आफ्टर हिज डेथ, जब मुर्शीद कुली खान की डेथ हो गई, उसके बाद उनके जो जवाई थे, बेसिकली सन इन लॉ शुजाउद्दीन, उन्होंने रूल किया फ्रॉम 1727 टू 1739. देन फॉर अ ईयर सरफराज खान. सो सरफराज खान वाज द son of Murshid Quli Khan. The incapable son of Murshid Quli Khan became the ruler, but he was killed by Alivardi Khan. So I'll show you one thing. Okay, so this is the whole chart कि कैसे कैसे कौन कौन रूलर बंगाल में आए. ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आप इजीली याद कर पाएंगे. सो सबसे पहले मुर्शीद कुली खान वॉज द दीवान ऑफ बंगाल. इन्होंने ही इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल की खोज की थी, मतलब स्टैब्लिश किया था. ठीक है, फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल. उसके बाद शुजाउद्दीन आए, वो थे सन इन लॉ ऑफ मुर्शीद कुली खान. ठीक है, सरफराज खान, ही वॉज सन ऑफ मुर्शीद कुली खान. ठीक है, ये इनके बेटे थे और शुजाउद्दीन इनके डॉटर के हस्बैंड थे बेसिकली. ओके, एंड देन केम द अलीवर्दी खान. सो अलीवर्दी खान का इनका कोई ऐसा फैमिली रिलेशन नहीं था, बट अलीवर्दी खान was the basically the governor of Bihar at that time. Okay, and after him came the Siraj ud Daula, जिनके टाइम पे हुई थी Battle of Plassey. So if you need to remember, Alivardi Khan and Siraj ud Daula were the two rulers जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे. ठीक है, और इन्हीं के साथ जो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके क्लैशेस भी हुए थे. So yes, so Alivardi Khan was the deputy governor of Bihar and he killed Sarfaraz Khan in a battle. Okay, and became the Subedar of Bengal by paying a large sum of money to Muhammad Shah, the Mughal emperor. So basically what he did was, उन्होंने एक बैटल में सरफराज खान को मार दिया. उसके बाद मुगल एम्परर को खूब सारा पैसा दे दिया कि आप इसके ऊपर अपना क्लेम नहीं बताओगे. ठीक है, और वो खुद अलीवर्दी खान जो थे, वो खुद बंगाल के दीवान बन गए. Later, Alivardi Khan's apprehensions were drawn to the Carnatic region, where Europeans companies had upsurged all powers. On realizing this, he expelled the Europeans from Bengal. So basically क्या हुआ, जब अलीवर्दी खान दीवान बन गए थे बंगाल के, तो उनका ध्यान गया कार्नेटिक रीजन की तरफ. ठीक है, जहाँ पे इंग्लिश ने फ्रेंच को हराया था. ठीक है, तो वहाँ की तरफ उनका ध्यान गया. तब उनको ये दिखाई दिया कि कैसे इंग्लिश ने स्टार्ट तो किया था ट्रेड से, लेकिन बाद में उन्होंने पॉलिटिकल पावर भी वहाँ पे गेन कर ली थी, और कैसे वहाँ के जो राजा थे, जो लोकल राजा थे, उनको सप्रेस कर दिया था. तो जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि शायद इंग्लिश जो है वो बंगाल में भी ये कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या की, सबसे पहली चीज़, उन्होंने यूरोपियंस को बंगाल से बाहर निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया. But Alivardi Khan died in 1756 and was succeeded by his grandson सिराज उद दौला. ओके, तो उसके बाद, उनकी मौत के बाद, उनके जो ग्रैंडसन थे सिराज उद दौला, उन्होंने टेक ओवर किया. ये मैं टेबल आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ. जब आप रिवाइज करेंगे तो इसी में से आप आराम से देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो रूलर्स थे, किसके बाद कौन सा रूलर बंगाल में आया था. ओके, देन व्हाट हैपेंड वाज कि जब उन्होंने ऑब्वियसली जब यूरोपियंस को निकाल दिया बंगाल से, तो यूरोपियंस को तो गुस्सा आ गया, तो कोई बैटल तो हुआ होगा उनके बीच में पावर के लिए. सो एट दैट टाइम बैटल ऑफ प्लासी हैपेंड. ओके, सो वी विल एक्चुअली फर्स्ट सी के एक्चुअली बैटल के टाइम पे क्या हुआ था. ठीक है, दैट वाज द इमीडिएट कॉज कि एकदम से बैटल स्टार्ट हुआ, और उसका हम बैकग्राउंड भी देखेंगे. So let's begin with Battle of Plassey. Okay, so let us see the background first. The Nawab of Bengal refused to grant company concessions, also demanded large tributes for the company's right to mint coins, and stopped fortification. So what actually Nawab of Bengal did was कि उन्होंने जो कंपनी थी, ठीक है, उसका जो कंसेशन था उसको डिनाई कर दिया. ओके, ऑल्सो जो नवाब थे उस टाइम बंगाल के, सिराजुद्दौला, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने जो लार्ज ट्रिब्यूट्स थे वो मांगे कंपनी से, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ राइट टू मिंट कॉइन्स। सो बेसिकली ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई भी कंपनी किसी एरिया में ट्रेड कर रही है तो जो वहाँ का राजा है या जो भी नवाब है वो ऑब्वियसली कुछ तो ड्यूटी कुछ तो डिमांड करेगा ही, ठीक है। एंड ही एक्चुअली ऑल्सो आस्क्ड देम टू स्टॉप फोर्टिफिकेशन, जो वो अपने फैक्ट्री का फोर्टिफिकेशन कर रहे थे उसको बंद कराने के लिए बोल दिया था। The company, on the other hand, declared the unjust demands of the local officials were ruining the trade of the company, and trade could only flourish if duties were removed. It also convinced that to expand trade, it had to enlarge its settlements. Okay, सो बेसिकली कंपनी ने क्या जस्टिफिकेशन दिया, कंपनी ने जस्टिफिकेशन दिया कि देखिए हम आपको ड्यूटी नहीं पे कर सकते बिकॉज आप हमें ड्यूटी फ्री ट्रेड करने दे रहे हो, लेकिन जो लोकल ऑफिशियल्स हैं आपके, दे आर एक्चुअली आस्किंग अस अबाउट द मनी। जैसे हम चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं, सो दे आस्क अस दैट मनी कि आप चेक पोस्ट क्रॉस करने का पैसा हमको दो, ठीक है। सो इफ द ट्रेड हैज टू फ्लरिश तो आपको ड्यूटीज हटानी ही पड़ेंगी। It also convinced that to expand trade, it had to enlarge its settlements. So basically उन्होंने ये भी convince किया कि अगर हमको अपना ट्रेड बढ़ाना है तो obviously हमको settlements create करनी पड़ेंगी ताकि लोग हमारे ऊपर विश्वास करें, बिकॉज अगर हम वहाँ पे रहेंगे वी विल बी सेटल्ड देयर, सो पीपल विल ट्रस्ट अस मोर, तो वो हमसे लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड रिलेशंस बनाएंगे, ठीक है। दिस इज वेरी ऑब्वियस, ठीक है। एंड दिस कुड हैपन ओनली इफ दे बाय अप विलेजेस, ठीक है। सो दे विल बी एबल टू एक्सपैंड देयर सेटलमेंट बाय बाइंग अप द विलेजेस एंड बिल्डिंग इट्स फोर्ट्स। सो दिस वॉज द बैकग्राउंड, ठीक है, कि बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने उनके सारे ड्यूटीज खत्म करने का फैसला ले लिया था और उनको फोर्टिफिकेशन स्टॉप करने के लिए बोल दिया था, जिस चीज से कंपनी जो है वो थोड़ा ऑफेंड हो गई थी। सो व्हाट वाज द एक्चुअल इमीडिएट कॉज, ठीक है, कि उस टाइम कंपनी ने या फिर नवाब ने ऐसा क्या किया कि दोनों में क्लैशेस हो गए। सो द इमीडिएट कॉज वॉज कंपनी वांटेड अ पपेट रूलर। सो बेसिकली कंपनी स्टार्टिंग से चाहती थी कि उनको एक पपेट रूलर मिले, ठीक है, हु वुड विलिंगली give trade concessions and other privileges, ठीक है। कंपनी gave asylum to a political fugitive, तो उनको पहली बात तो एक पपेट रूलर चाहिए था, ठीक है, जो कि उनको नहीं मिला। दूसरा उनको चाहिए था कि उन्होंने क्या किया था बेसिकली कि एक पॉलिटिकल फ्यूजिटिव थे कृष्णा दास, ठीक है, ही वॉज द सन ऑफ राज बल्लभ हु हैड फ्लेड विद इमेंस ट्रेजर अगेंस्ट द विल ऑफ नवाब। तो कृष्ण दास जो थे वो राज बल्लभ बेसिकली इनके नवाब की कोर्ट में एक बेसिकली नोबल थे, ठीक है। तो उनके बेटे थे कृष्णदास जो कि बहुत सारा ट्रेजर लेके भाग गए थे अगेंस्ट द विल ऑफ नवाब। सो इफ यू विल सी कि मैंने इधर छोटे में सारे जो भी रीजंस थे बैटल ऑफ प्लासी के वो सब मेंशन किए, ठीक है। सो बेसिकली क्या था, जो अलीवर्दी खान थे, ठीक है, वो अपने कोर्ट में बहुत सारे राइवल्स छोड़ के गए थे और सिराजुद्दौला को ये मौका नहीं मिला कि वो उन लोगों को निकाल के अपने ट्रस्ट वर्दी लोगों को अपने कोर्ट में रख सके। सो बेसिकली सिराजुद्दौला हैड मेनी राइवल्स इन हिज कोर्ट इंक्लूडिंग अ rival cousin Shaukat Jung, hostile aunt Ghasiti Begum and a rebellious commander Mir Zafar, ठीक है। तो ये सब उनके अगेंस्ट थे, उनका एक कजिन, उनकी एक हॉस्टाइल आंटी, ठीक है, और उनका जो कमांडर था वो भी काफी रिबेलियस था, ठीक है, हिज नेम वाज मीर जफर। सो कंपनी एक्चुअली सस्पेक्टेड कि जो नवाब हैं वो उनके जितने भी प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, उन सबको रोक देंगे, ठीक है। और बेसिकली उनको क्या पता चला था सोर्सेज से कि नवाब ये प्लान कर रहे हैं कि वो इंग्लिश को बंगाल से निकाल के वो फ्रेंच लोगों के साथ एक कोल्यूजन करके बेसिकली कि फॉर एक काइंड ऑफ के एग्रीमेंट करके कि हम आपको ट्रेड करने का मौका देंगे बट प्लीज हेल्प अस कि हम इंग्लिश को बंगाल से निकाल सके। तो बेसिकली ये कुछ नवाब के पीछे स्ट्रैटेजी चल रही है, ऐसा कंपनी को लगा, ठीक है। नवाब ऑल्सो आस्क्ड टू स्टॉप फोर्टिफिकेशन बट इंग्लिश कंटिन्यूड। नवाब ने बोला कि आप फोर्टिफिकेशन बंद कर दो बट इंग्लिश ने नहीं किया। सो आफ्टर ऑल ऑफ द नेगोशिएशंस दिस एक्चुअल बैटल हैपेंड। ऑल्सो जो कंपनी थी उन्होंने एक पॉलिटिकल फ्यूजिटिव को, एज आई टोल्ड यू, ठीक है, उन्होंने बेसिकली क्या किया, एक सीक्रेट अलायंस बनाया मीर जफर के साथ, राय दुर्लभ, जगत सेठ एंड ओमनी चंद। सो ये सब भी काफी रिबेलियस थे, ये भी इसी में ही आएगा एक रीजन
कि उनके जो कोर्ट में थे, कोर्ट में काफ़ी रिबेलियस लोग थे, काफ़ी उनके अगेंस्ट थे लोग, ठीक है। तो उन लोगों ने मिल के रॉबर्ट क्लाइव के साथ, मतलब इंग्लिश कंपनी के साथ, नवाब के खिलाफ एक बैटल लड़ी। तो बेसिकली इसको हम अब बैटल ऑफ ट्रेटर्स भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है घुमा फिरा के कि व्हाट एक्चुअली लेड द इंग्लिश विन। ओके, सो बेसिकली क्या था कि जैसे होता है ना, कहते हैं, कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए, तो वही वाला काम हुआ था इस बैटल में कि जितने भी सिराज उद्दौला के कोर्टमैन थे उन सब ने उसी के खिलाफ एक मतलब जंग लड़ी थी इंग्लिश के साथ मिलके। वो उसी के अगेंस्ट हो गए थे। अब खुद के ही लोग अगर खुद के अगेंस्ट हो जाएंगे तो कोई बैटल जीतना इज इम्पॉसिबल। तो जब ये एक्चुअली जो सीक्रेट अलायंस इनका बन गया था रॉबर्ट क्लाइव का और मीर जाफर, राय दुर्लभ और ये सब जो भी ओमनी चंद वगैरह जो भी उस लोग थे, तभी ये फेट डिसाइड हो गया था कि ये बैटल कौन जीतने वाला है। तभी पता चल गया था कि इंग्लिश साइड ये बैटल जीत जाएगी, ठीक है। सो व्हाट बेसिकली, बट ऐसा नहीं है कि जो नवाब थे उन्होंने हार मान ली थी। तो उन्होंने क्या किया, नेगोशिएशंस किए पहले कंपनी के साथ कि ठीक है बैठ के ये चीज़ें सुलझाते हैं। लेकिन जब नेगोशिएशंस फेल हुए, व्हाट एक्चुअली सिराजुद्दौला डिड वाज ही एक्चुअली सीज्ड द इंग्लिश फोर्ट एट कैलकटा। तो जो कैलकटा में इंग्लिश फोर्ट था उसको उन्होंने सीज कर लिया एंड ही एक्चुअली इम्प्रिजन्ड मेनी इंग्लिशमैन विद विच अल्टीमेटली लेड टू बैटल। तो उन्होंने काफ़ी सारे इंग्लिशमैन को भी कैद कर लिया था, जिसकी वजह से जो इंग्लिश है वो काफ़ी इरिटेटेड हो गए थे और इस वजह से बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट हुआ। दीज फोर वर द इमीडिएट रीजंस, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं बैटल ऑफ ट्रेटर्स, के सबने खुद के ही लोगों ने धोखा दे दिया, ठीक है। So now we will talk about what happened in the battle. So a secret alliance made by Clive with the traitors, and under it Mir Zafar was to be made the Nawab, who in turn would reward this company for its services. So basically एक डील हुई थी जो ट्रेटर्स हैं और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में कि मीर जफर को दीवान बनाया जाएगा, ठीक है, नवाब बनाया जाएगा बंगाल का जब सिराजुद्दौला हार जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, मीर जफर जो है कंपनी को काफी सारे सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, जिसके वो लायक हैं। दिस कॉन्स्पिरेसी हेल्प टू स्ट्रेंथन द इंग्लिश पोजिशन। So there, the English ultimately won the Battle of Plassey as due to conspiracy of the officials of Nawab helped in defeating 50,000 strong forces of Nawab by handful of Robert Clive's forces. After the war, the English monopolized trade and commerce in Bengal. So basically आप सोच लीजिए ये जो अलायंस बना था ट्रेडर्स के बीच में और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि थोड़े से कुछ ही आदमी थे रॉबर्ट क्लाइव के पास, ठीक है, कुछ ही आर्मी मैन थे, लेकिन उन्होंने 50,000 स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नवाब, जो नवाब के पास 50,000 स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थी 50,000 लोगों की, उनको हरा दिया था, ठीक है। तो ये फर्क पड़ता है कि जब खुद के लोग जो होते हैं वो स्ट्रैटेजी बता देते हैं किसी और को। उसके बाद क्या हुआ, जब इंग्लिश ये बैटल जीत गए तो दे एक्चुअली मोनोपोलाइज ट्रेड एंड कॉमर्स इन बंगाल, कि उन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स बंगाल में मोनोपोलाइज कर लिया था कि कोई और ट्रेड कंपनी आके बंगाल में ट्रेड नहीं कर सकती। बेसिकली दे एक्चुअली एस्टैब्लिश देयर पावर इन बंगाल। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल? ओके, कि हमें क्या सीखने को मिलता है बैटल से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन यू राइट योर एनालिसिस सो यू एक्चुअली राइट कि इससे हमें क्या सीखने को मिला। ओके, सो द बैटल ऑफ प्लासी हैड अ पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस फॉर इट laid the foundation of the British Empire in India. So basically इसका political significance ये था कि जो British Empire था उसका foundation lay हो चुका था एक proper territory, बंगाल जैसी strategic location पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक एम्पायर बना लिया था, एक फाउंडेशन रख लिया था। इट हैज़ बीन रिगार्डेड एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, सो दिस इज रिगार्डेड एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रिटिश रूल। इंग्लिश सुप्रीमेसी established in Bengal, their main rivals, the French, were ousted. So basically, French का जो थोड़ा बहुत ट्रेड था बंगाल में, उनको भी वहाँ से निकाल दिया गया। So this is how कि इंग्लिश ने अपना एक पावर स्टैब्लिश किया बंगाल में। तो जो बैटल ऑफ प्लासी है उसको बंगाल के ऊपर पावर स्टैब्लिश करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बैटल माना जाता है। ऑल्सो इट इज़ अ टर्निंग पॉइंट कि इससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सिर्फ क्या करती थी, ट्रेड, इधर उधर की बातें या इधर उधर किसी के कान बनना। इट वॉज काइंड ऑफ अ सपोर्टिव लाइक फोर्स। ओके, कि अगर किन्हीं दो रूलर्स के बीच में झगड़ा हो रहा है तो वो उनको सपोर्ट करती थी। बट आफ्टर दिस वॉर
India, like the British East India Company actually became in itself a very major power in Bengal, ठीक है. तो उसके बाद क्या हुआ, वो उन राजाओं के बराबर हो गई थी एक्चुअली, कि बंगाल में सिर्फ इसी का राज था. क्योंकि इसके बाद जब मीर जाफर जो है वो बन जाते नवाब, तो बेसिकली वो तो पपेट रूलर ही होते, जो कंपनी उनको बोलती वही वो करते. बाकी इसके बाद एक ट्रीटी भी साइन हुई थी मीर जफर के बीच में और इंग्लिश के बीच में. उसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम बैटल ऑफ बक्सर भी डिस्कस करेंगे. ये दो बैटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए. सो यू शुड नॉट मिस एनी थिंग अबाउट दीज बैटल्स, फ्रॉम इट्स ईयर टू इट्स प्लेस टू whoever actually participated in this battle. एक एक नाम बहुत ज़रूरी है, ठीक है. So I'll see you guys in the next lecture. Till then, please take care and bye bye.